Now we are live on YouTube again. So we would like to welcome you again on our different topic, very nice topic, because right from today, Valentine week is started. And the first day of that is Rose Day. Rose Day, Propose Day. Every day we have correlated with our Ayush. In our program of February, you can observe this. So today we would like to hear from experts. Our expert, Dr. Surjit Kaur Baba, medical cosmetology and trichology expert, founder of Urja Skin Clinic and Medical Cosmetology Institute, honorary consultant, Skin Department, Bharati Vidyapeeth College of Ayurveda and Hospital, Pune, and president of South Mumbai, Maharashtra Ayurveda Sammelan. Such dignitary is with us today. So we would like to listen. He is medical cosmetologist also. So we would like to listen the medicinal efficacy as well as cosmetic efficacy of our rose gulab, because today we are starting with Rose Day. Welcome, madam. Welcome. So first and foremost, I'm very thankful to you for giving me the platform to share knowledge. Rather than sharing, we are learning so much from you. आपको सर सैल्यूट है आपकी कंसिस्टेंसी के लिए. आई मीन यू आर आई एम इन ऑ अबाउट दैट. कितने आप डेली यू आर स्प्रेडिंग नॉलेज टू द वर्ल्ड. सो थैंक यू फॉर आप दैट. लोगों को देख के ऊर्जा आ जाती है मैडम. आप लोगों को सबको देखता हूँ, अपने आप ऊर्जा आ जाती है. ये आपका बड़प्पन है. सर आई विल शेयर द स्क्रीन नाउ. श्योर श्योर श्योर. ओके. सो आप सभी को प्रणाम, नमस्ते. टुडे इज इंटरनेशनल रोज डे. सो एज वी से जैसे ही हम रोज को देखते मन एकदम खुश हो जाता है कि इट इज सच अ ब्यूटीफुल फ्लावर. सो जैसे आप पवन सर ने बताया कि वी आर सेलिब्रेटिंग द वैलेंटाइन वीक एंड इट स्टार्ट्स विथ 7th of February, that is Rose Day. So there is a lot of pomp and enthusiasm about it. So let me share some historical, significance about the rose. So in Roman mythology, roses were a symbol of mystery and passion. So it was related to Lord Venus, the goddess of beauty and love. Whereas in Eastern civilization, as our Asian and Arabic cultures, roses are associated with love, perhaps because of their sweet scent and beautiful colors. Usually, Victorians were the first to show love by giving roses as a token of affection to each other. So since then, February 7 is recognized as Rose Day and a day to celebrate the giving and receiving of roses. Now the regional names. In Sanskrit, we call it as Taruni, Shatapatri. Hindi में ऐसे गुलाब कहते हैं. In Bengal, they call it as Golap, and these are the various names. Now, this ornamental plant also has some medicinal properties, which is mentioned in the classics of Ayurveda. It is used in the management of inflammatory conditions, including arthritis, cough, asthma, bronchitis, wounds, ulcers, etc. Now, Ayurveda text. According to Ayurveda, it is Ridhya. It is Rudhya, Medhya, Tvachya, Ruchya, Vrushya, Kushtagna, and Grahi. Also, researchers suggest that it has medicinal uses as astringent, relaxant, and nervine. We are also using it for treating burns, abrasions, minor wounds. So now in classical categorization, according to Bhav Prakash Nigantu, it comes into the Pushpa Varga. According to Dhanvantari Nigantu, it is in Amrutadi Varga. Kayyadev Nigantu says it is in Aushadhi Varga, and whereas Raj Nigantu says that it is in Karviradi Varga. According to Bhav Prakash, it is called as Shatapatri. The Rasaguna Vipak is, it is Tikta and Katu. Guna is Hima or Thanda hai wo, Laghu hai. Tridoshagna, also it is Rudhya. Like whenever you see a rose, you feel nice. Grahi, it is Shukral and also it is Pachak.
Now, the medicinal uses of rose. The roots of rose are useful to treat intestinal ulcers, rickets, hemorrhages, diarrhea, and also they are astringent in nature. Whereas the leaves of rose are used in treating wounds, in ophthalmic conditions, in hepatopathy, and also in hemorrhoids. Now, the flowers, whereas the petals of the rose, they have cooling, they are emollient, they are aromatic, they are cardiotonic, anti-inflammatory, they're aphrodisiac, and they're intellect promoting types. They're digestive, and they have multiple good effects of rose. Now, rose petals, they are rejuvenating and prove to be a tonic. It's also used as an antioxidant, antitussive. It has pleasant fragrance. It is used to make essential oils and perfumes. Now, it has shown potent antibacterial activity, as well as it inhibits the growth of leukemia cell time. Rosehip tincture is an effective astringent for treating diarrhea or in relieving colic, or a component in cough remedies. Now, various formulations of rose are rose oil and rose water. Um, According to skin conditions, wherever there is skin burn or pigmentation, we use rose oil to give a cooling effect. And rose water, it is also used as a toner, or those who have open pores, for them also it is helpful. Now, rose petals are used in making rose oil that is steam distilled by crushing. The byproduct of steam distillation is rose water, which is excellent relaxing agent. It soothes the nerves and adds flavor to a variety of food dishes also across the world. Now, rose essence is rich in flavonoids, tannins, antioxidants, vitamins A, B3, C, D, and E, making it very beneficial for skin. Rose essential oil is also used with carrier oils such as almond oil, grapefruit oil to treat various illnesses like hemorrhage, liver problems. It's also useful in nausea. And if someone is very tired, you just spray that rose water on the face, you feel fresh. Then it's also useful in bacterial infections of the stomach, colon, and urinary tract. Rose petal tea is, exotic tea wherein, people have some stylish teas across the world. So it is also efficient in cleansing the gallbladder and liver. It also helps improve bile secretion. Rose petals, they are usually dried and crushed to make this tea. It helps in alleviating mild sore throats and bronchial infections. This tea cools the body and reduces fever-related rashes. Now, our in Ayurveda, we are using it as Pravar Yukta Gulkand, or they say that rose petal jam. This is the name what internationally it is called as. Gulkand is a pitta pacifier. It is beneficial in treating ulcers. It prevents swelling in the swelling in the intestine. It reduces excessive perspiration and foul body odor. Usually, it is to be taken during summer times to avoid sunstroke and to avoid retention of urine. Like it helps improving the urine output. It also controls nostril bleeding. Gulkand is powerful antioxidant and a very good rejuvenator. Also acts on Rakta Dhatu. It is a very good Rakta Prasadak Dravya, hence can be used in various skin conditions. It can also be used to treat dysmenorrhea or menstrual pain. It also works as a calming agent. Now, Gulab Arka. It is the distillate manufactured from the rose petals and is used to treat burning sensations of the eyes, remove bad odor of the body. Rose water prepared from rose leaves is an effective astringent that reduces swelling of capillaries beneath the skin. It also relieves from constipation, clears blood, and soothes the mind. In addition, they have shown wonderful results in treatment of measles and chickenpox. Now, the moment you see rose, it is such a beautiful flower. It works like antidepressant. It is also antispasmodic. It is aphrodisiac, antibacterial, antiviral, antiseptic, anti-inflammatory, blood tonic, digestive stimulant, expectorant, increases bile production, menstrual regulator. Now, rose water is also used to prepare Ayurvedic formulations as Pravar Pishti, Mukta Pishti, and Manikya Pishti. Pravar Pishti is used to treat a lot of pitta-related conditions in cough, cold, and Mukta Pishti, again, it is used in treating diarrhea with bleeding in maniacs and psychosis. Whereas Manikya Pishti, it is used medicine prepared from ruby with rose water that is used to treat oligospermia and it boosts immunity. Now, Rose, these are certain researches done
done by different people, wherein they say that it has cardiotonic activity. It has physiological and psychological effects on the nervous system. Like it has a sedative effect on humans and can be used as an alternative source of essential rose oil. Also, anti-arthritic activity, analgesic activity, antibacterial. So these are the research done by people and shown the various their positive effects on the system. It can also be used as aromatherapy in conditions of dysmenorrhea, analgesic and anxiety activity. So practically saying accessibility, feasibility, versatility, and the cost effectiveness of this drug are the best qualities of rose, which make it more and more helpful to combat stress through its Hridya property. Now, in skin, how do we use it? Or in cosmetology? Now, rose has gentle moisturizing properties. It purifies and tones up the skin for a radiant complexion. Then also, it is refreshing. Like, it can be used as anti-fatigue lotion that can boost your dull complexion. Now, these are the petals. These are again, as I said some time back, they're extraordinary anti-inflammatory and antioxidant qualities. They have mild astringency that's perfect for soothing and perfecting your skin. It balances and restores the skin's natural pH. Now, let me tell you, the natural pH of our skin is towards the acidic side. It smooths fine lines, redness, and wrinkles. So gentle, it's perfect for all skin types, even children's. So divine scent appeals broadly to both men as well as women. Now, the benefits of the rose in cosmetics are it is soothing. So, it tends to tighten the skin. It protects the skin for against the external aggressions of the daily pollution, wind or cold. It relieves inflammations, it is healing, and it also calms the redness. It is moisturizing. So it tightens the skin, it works on the elasticity of the skin. It is anti-aging. So its antioxidant benefits, they allow to act against the skin aging. The rose firms the epidermis and fights against the appearance of wrinkles. It is also purifying and sanitizing. For combination or to oily skin, its active ingredients, they limit excess sebum to prevent shine and tighten the skin pores without drying it out. So it is also invigorating. Rose gives you a healthy glow. So, if you ask me, how do we use these rose in our cosmetology practices? So, whenever there are some exotic treatments which we do, what we can do is we can just take those petals, crush them and make a small potli of that, and we just do a nice, tapping on the skin with that. So it's very refreshing and it feels good. Basically, these are all luxury treatments which people want to undergo. As we say that cosmetology is for those people who, for them, sky is the limit. So rose is used in one of the exotic treatments in Ayurveda. Also, rose water. Whenever we are giving them eye pads, like when we apply some aloe vera gel on the skin, we soak those eye pads in little bit of rose water. So it is very relaxing. At the same time, we can use rose water as a mixing agent for our skin packs which we are using, or the face packs which we use. Apart from this, we make certain skin creams for anti-aging creams. So these are also very refreshing. Also, it is wonderful anti-aging cream can be made with this rose powder. And what to say? I mean, when you rose, sky is the limit. We can make multiple things from that, especially the moisturizing cream. And we can make certain, what you say, regimens for skin treatments. We just apply this rose water. It tightens the skin pores, post certain treatments for those who have open pores. For those who just want anti-aging properties, we make those small potlis and we, use it along with certain creams for massage or for tapping on the skin. And sky is the limit. So once again, happy Rose Day to one and all. And thank you, Dr. Pavan Kumar sir, for this great opportunity. I appreciate for giving this platform.
Thank you so much. Thank you. Please do join whenever you have time and topic of your choice. Please do join. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Because our topic are multidimensional Yes. and very interesting now. And we have Absolutely. reduced the time of webinar from 3 hours to 1 hour and 3 webinars per day. Wonderful. Oh my God. Yes. So thank you. Thank you very much. Thank you. Agnihotri sir. Thank you, Professor Pawan Sharma ji. Thank you, Dr. Surjit Kaur Baba. Really, you told and you narrated the rose flower beyond of its size. You detailed all the things, covering all the aspects. It's the pharmacological actions, especially for GIT, and also preparation for pharmaceuticals effect in making prestige and all that. So really, your approach is wonderful. And as per Professor Pawan Sharmaji's request, we also request that you please join again and again. It's a very interesting platform where knowledge is merging and knowledge is emerging. So in that way, it's very good to put it and to take it from you. So we will be really obliged to have you as a knowledgeable person. Thank you so much. Thank you, sir. It's really what you say. You are very modest, and we are learning so much from you. Thank you. I'm in transition. I'm in train, but Okay. we are supposed to be there. Whatever the condition government of God is providing us, whenever, wherever Professor Pawan Sharma ji joins from airport, airplane, launch, everywhere, everywhere, even from the corridor of the temples also. Whenever he happens to be inside, he just starts it with the prayer and then we continue. So he is a wonderful person, not having any gap, any tiredness, and keeping on this whole burden on his own shoulders and making it possible to see the world after we will not be here. मानना पड़ेगा सर आप लोगों को. And अरे you जय हो, आपको हिंदी भी आती है. हम समझे हम खामी का दूसरे की बैसाखी भी चल रहे हैं. नहीं सर. सर क्या करें? I mean, it is the medium of instruction. I mean, I don't know because आपने बताया नहीं, international जब तक webinar है. जब So जब तक अपनी मदर टंग ना आए, बात ही नहीं बन पाती है. जी बिल्कुल सर, बिल्कुल. और नेहा जी भी है, वो जी उधर अच्छा बहुत काम अच्छा करें. बोली. जी बहुत अच्छा काम बोली. रियली नहीं ऐसे नहीं, सॉरी सर, मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगी. आप मेरी श्योर वजह श्योर से श्योर, बिल्कुल भी मोस्ट वेलकम. परेशान ना हो. आई लव हिंदी, और मैं तो विदेशों में रह के भी गोरों को भी वही मैंने तो. हिंदी सिखा दी है और कालों को नहीं, भी सिखा हिंदी दी है. और आयुर्वेद क्या दोनों बात, चीजें, क्या बात. क्या दोनों बात. वही तो. साउथ अफ्रीका में तो हमारी खुद एक भतीजी है, वो बोस्टवाना में रही है, और वो वहाँ नाइजीरिया में रही है, और वो लोग हिंदी की टीचर हैं. यहाँ की हाँ हिंदी जी एमए सर. पीएचडी वो हिंदी टीच करती हैं. रियली. तो आप लोग जब भी जहाँ भी कहीं होंगे, हिंदी और आयुर्वेद को बोलेंगे तो एक अजब ही महक आती है, अलग अलग ही सुगंध प्राप्त होती है. थैंक यू सो मच होती फॉर है सर, ज्वाइनिंग. और प्लीज. वो हिंदी का जो एक लगाव है, जो समझ है ना, वो अलग ही होती है. वो अपना सा लगता है थोड़ा. जी जी. अरे आप थी कि नहीं थी अभी जब हमारी पहली वेबिनार शुरू हो रही थी, तो हमारे जेपी सिंह साहब अयोध्या से थे और बोल हाँ, रहे थे. हाँ, अमृतसर के रहने वाले, अयोध्या के रहने वाले थे. एकदम ठेठ मतलब अवधि भाषा, भोजपुरी और अवधि भाषा. अवधी भाषा बोल पड़े थे. बढ़िया. हाँ हाँ. तो वो बिल्कुल नहीं. हम लोग करते हैं ना, मदर टंग डे भी मनाते हैं, और हिंदी आ रहा लैंग्वेज है डे अभी. मनाते हैं. हाँ, अभी आ रहा है मदर टंग वर्ल्ड. डे, फरवरी में ही है. सर मंत्र डे भी बनाइए, तो जो भी अच्छे है. से मंत्र चैंटिंग करेगा तो उसके लिए भी आप कुछ कीजिए. नहीं, अवार्ड दिया हमने, 3 बार अवार्ड दिया. अच्छा. धन्वंतरी स्तुति का हमने कंपटीशन किया. हाँ. मंत्रों का हमने कंपटीशन किया, आयुर्वेद के कंपटीशन, दैव्य पाश्रय चिकित्सा का किया. आप इंटरेस्टेड है तो आपका स्वागत है, जी सर. स्वागत है. जी सर. आप दीजिए, आपकी आपका जो इच्छा पूर्ति होगी, और अच्छे से लोग, नए नए लोग जुड़ेंगे, और बेहतर होगा मंत्र का रिसाइटेशन. वो आपकी आवाज बंद हो गई. डॉक्टर नेहा जी, आप कुछ बोलेंगे गुलाब के लिए? सर मैडम ने ऑलरेडी सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए. उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं कुछ बोलने के लिए. आई क्या एम रियली बात. इम्प्रेस्ड. बहुत अच्छा था. मतलब आयुर्वेदिक से लेके और एलोपैथी से लेके, फ्रेगनेंस से लेके, नेचुरोपैथ से लेके, उन्होंने सभी कुछ पूरा कवर किया. एंड आई थिंक इससे ज्यादा पहले तो ऐसा समझ में आ रहा था कि रोज को मतलब एक फूल की तरह ही देख सकते हैं,
जो कि हम लोग आयुर्वेद से जुड़े हैं तो पता है, लेकिन उन्होंने इतने सारे चीजें कवर कर ली कि अब बस अब आवाज बंद हो गई सबकी। सब कुछ आ जय गया हो, उसमें। जय हो, नहीं नहीं, बहुत रियली नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक्स मैम। से आगे आगे बोलिए। कई रिसर्चेज हुई रोज पे, तो रोज की हाँ जी सर। रिसर्चेज में ये प्रूव हुआ कि ये एंजाइटी रिड्यूस करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है। हम गुलकंद के रूप में खाएं या किसी गुलाब के उसमें खाएं, सूदिंग क्रैम्प्स, जो हमारे क्रैम्प्स हैं उनको ये ठीक करता है। ट्रू। एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है इसमें, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स का ये खजाना है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, कहीं कहीं तो ये बिल्कुल हीलिंग प्रॉपर्टी के लिए बताया गया कि यदि कुछ न मिले तो घाव के ऊपर आप इसकी पेटल्स को पेस्ट करके लगा लीजिए, तो आपका घाव भी शांत होगा। रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, वो भी इसी तो में है। और मतलब अरे क्या हो रहा है? ऐसे बात ट्रेन करूं, ट्रेन करंट बाकी कैसे? तो सब सुरजीत जी ने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया, उसे रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं। लेकिन फिर भी जिन्होंने क्विंटल्स में रोज वाटर यूज किया है, लेकिन एक अलग के लिए, ऐसे लीजेंड रस शास्त्री, मैं लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर को सादर आमंत्रित करता हूं उनके वक्तव्य के लिए। रोज वाटर हमारे यहाँ भावना में बड़ा यूज होता है, जहां भी भावना का नाम आता है तो प्रीमियम भावनाओं में रोज वाटर का नाम है। आदरणीय लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर, सभी विद्वानों को नमस्कार। प्रणाम। मैंने गुलाब के नमस्ते बारे में सर। कुछ सुना, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया। और जहाँ तक मेरी समझ है, आपने क्विंटल्स में प्रयोग करने की बात कही, तो मैं तो ये मानता हूँ कि साहब हम लोग रोज वाटर पैक करके भेजने में, क्योंकि कंपिटिटिव रेट में असली रोज वाटर तो बाजार में बिक नहीं सकता क्या लोएस्ट बात रेट। है। ट्रू। ईमानदारी की बहुत ही बात है। मतलब ये गुणगान करना बहुत अलग चीज है, और जब बाजार में मिल रहा है वो रोज वाटर है भी, गॉड नोज। हमारे दादाजी बनाते थे खमनोर में, ये हल्दी घाटी के पास एक गांव है, वहाँ कुटीर जी उद्योग की तरह होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। और जी गुलकंद, इत्र और गुलाब जल, और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने बाद में बिजनेस बंद कर दिया। तो घर में हमने इस चीज को देखा। और जब हम आईएमपीसीएल में गए और सीजीएचएस सप्लाई में गुलाब जल की बात आती है, तो कन्नौज से लीटर्स में काफी चीप रेट में मिलता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि गुलाब का क्या भाव है, और वास्तव में जिस गुलाब में गंध है वो गुलाब से बनेगा। नहीं तो एसेंस और डिस्टिल वाटर को आप गुलाब जल बोले तो पूरा बाजार भरा पड़ा है। आज भी 500 रुपये लीटर आपको असली गुलाब जल मिलेगा। आश्चर्य नहीं करना चाहिए, इससे ज्यादा ही कॉस्ट होगी उसकी, क्योंकि गुलाब जल में द्विआतसा त्रिआतसा जहाँ फ्लेवर बढ़ेगी और जेन्यून ओरिजिनल है, तो वहाँ डबल डिस्टिल ट्रिपल डिस्टिल ऐसा वो गुलाब जल मिले, उसकी कीमत वास्तव में होगी। किंतु हाँ, उसका प्रयोग करने से आंखों में लाली चली जाती है, जो आंखों में जलन और स्क्लेरा जो है रेड कलर का है, काफी उजिंग हो रहा है कैपिलरीज में ट्रू। ब्लड, तो उसमें वो ठंडक देता है। और ये हमने प्रत्यक्ष से देखा है। दूसरा, इत्र की बात है, तो वो इत्र किस बेस पे बनता है? तो हमारे घर में जो बनाते थे, चंदन के तेल के ऊपर बनाते थे। और हेयर ऑयल बनाते थे तो कोकोनट ऑयल के ऊपर बनाते थे। और इस तरह से गुलकंद बनाते थे। फिर उससे पान वालों के यहाँ बेचना है, सभी लोग पान में गुलकंद खाते हैं, किंतु घर में जो गुलकंद बनता था उसमें और आज जो बाजार में चाशनी में पकी हुई पत्तियां डाल के जो गुलकंद बनता है, उसमें अंतर है। ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि साहब हम बुक में लिखा है पढ़ते हैं, वैसा होता नहीं है। देखिए, नहीं होता। शतपत्री और सेवंती दो तरह के गुलाब हैं। इनका अर्क निकालने को अर्क प्रकाश में लिखा भी है। तो सेवंती मतलब सफेद गुलाब का अर्क, उसके गुण वहां दिए हैं। और इसी तरह से लाल गुलाब जो है, चेती गुलाब रक्त वर्ण का, जो असली गुलाब है उसका, तो उसके गुणकर्म भी दिए जो ऑथर है वो इतना विद्वान था कि उसने एक श्लोक में दो द्रव्यों के अर्क के गुण लिखे। किंतु बाद में पाठ पूर्ति करने के लिए संपादकों ने जो श्लोक जोड़ दिए, 100 श्लोक पूरे करने के लिए, उसमें 2 लाइन में गुलाब के अर्क के गुण लिखे हुए हैं, जिसको शतपत्री अर्क बोलते हैं हम लोग।
तो गुलाब जल जो है वो यूनानी में भी काम आता है। नूर जहां का नाम भी इतिहास में इसके साथ जुड़ा हुआ है कि साहब वो नहाती थी अर्क गुलाब से, इस तरह का। किंतु इसके पहले से हम आयुर्वेद में इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। चरक संहिता में, संहिता काल में भी वन्य गुलाब का वर्णन है, और उसमें शतपत्री नहीं होता है, 4-5 पत्तियां ही होगी, और जंगल में वाइल्ड वेराइटी आज भी हमने उत्तरांचल में देखी है। तो जो स्थिति है वो यही है कि सब हम इसको कैसे कहाँ प्रयोग करना। तो इत्र का प्रयोग, अर्क का प्रयोग, और फिर गुलाब की पत्तियों का, फूलों की पत्तियों का प्रयोग चूर्ण रूप में होता है, सारक के रूप में। तो तरुणी कुसुमाकर चूर्ण एक प्रसिद्ध है, जिसमें सनाई के साथ में गुलाब की पत्तियां वगैरह हैं। और इतना जरूर है कि साहब गुलाब की पत्तियां जो हैं वो सारक हैं, किंतु अर्क से विरेचन हो ऐसा नहीं है। अर्क का अलग प्रॉपर्टी है, और अर्क की पिष्टियों में भावना देने के लिए है गुलाब जल की। किंतु वो तो पिष्टी बनाने के बाद सूखने पे जितनी देर मर्दन करेंगे सूखेगा, तो फिर उसमें से वो गंध निकल जाएगी। जो आज का बाजार का अगर गुलाब जल लेके हमने भाव ना दिया तो द्विआदशा त्रिआदशा करने के बाद में होगा, तब वो जो रत्न चूर्ण है वो थोड़ा सा खुशबूदार रहेगा और उसका वर्ण प्राकृत रहेगा। इतना ही कह के मैं आप लोगों को साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार। सर मैं थोड़ा सा Okay. इंटरप्ट करना चाहूंगी, इफ यू Sure, डोंट sure. माइंड। जैसे कि सर अभी लक्ष्मीकांत सर ने बताया कि द्विवेदी जी ने कि कुछ ओरिजिनल नहीं रहा, सभी कुछ अब मार्केट प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, सभी कुछ अब बिजनेस में स्तर पे जा चुके हैं। सर हमारा जो इससे पहले का वेबिनार था, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दैट के आयुर्वेदा एंड केमिकल यूजेस। सो एक्चुअली नथिंग इज नाउ ओरिजिनल, यू कैन से। ये जो रोज की बात जो हो रही है, आज हम गुलाब की जो बात कर रहे हैं, इसका जो आयुर्वेदा में बोला गया है, तो इसका एक बहुत ही शरीर को ठंडक देने वाला रूप है ये गुलाब का। और ऑफ कोर्स जब हम केमिकल वगैरह इसमें डालते हैं, क्योंकि ओरिजिनल तो मिलना बहुत मुश्किल है, फ्रेग्रेंस वगैरह डाला जाता है, सब कुछ डाला जाता है। तो एक्चुअल जो ओरिजिनल सर ने जैसा बोला कि एक्चुअल जो रोज का जो फ्रेग्रेंस है, इससे हमारी रेड आईनेस, मतलब कि जो आई ड्राई हो जाती है, जिसमें बॉडी का एसिड बढ़ जाता है, उसको बहुत सीधे सूदिंग इफेक्ट देता है, उससे आंख एकदम क्लियर हो जाती है। लेकिन उसी तरफ मैं बोलूंगी कि अब हम जो अगर मार्केट से खरीद के यूज करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे आई में, आंखों में इन्फेक्शन भी मिलता है, क्योंकि उसमें ट्रूली सब कुछ मिक्स है, कुछ मतलब कुछ प्योर रहा ही नहीं है। ये मैं सर कंक्लूड करना चाहती थी, एंड थैंक यू वेरी मच, इट वाज बाजार अ में जो रियली आता नाइस। है, बाजार में जो आता हाँ है जी, वो इंटरनल यूज का नहीं होता, ट्रू सर, इवन ट्रू केवल, ट्रू। हाँ, राइट। कॉस्मेटिक के यूज के लिए है, केवल गंध है, और वो केमिकल गंध है, ओरिजिनल नहीं और है। सर पहली और बात तो वास्तव जो में, गुलाब की जो पैदावार है वो ही इस तरीके की हो गई, उनकी ब्रीड्स ही अलग हो चुकी है, वो देसी गुलाब है ही नहीं अब ना, पहली बात तो। हाँ, कुछ इलाके में खेती होती है, जैसे दरगाह है अजमेर में, तो वहाँ हाँ, गुलाब की खेती होती है, फूल बिकते हैं। तो पुष्कर के इलाके में देसी गुलाब मिल जाएगा, या हल्दी घाटी में खमनोर में आपको देसी गुलाब मिलेगा, या कन्नौज वाले जहाँ से लेते हैं वहाँ मिलेगा। किंतु जो स्थिति हमारी है वो कीमत के आधार पे, तो अब रूह ट्रू। गुलाब जो है वो मतलब काफी, मतलब लाखों रुपए का लीटर होगा। तो वो भी बिजनेस करने वाले करते हैं, और जिनके जेब में पैसा है वो ओरिजिनल खरीदते भी हैं। तो डबल डिस्टिल, 7 टाइम डिस्टिल्स गुलाब जल भी बाजार में है, ब्रांडेड। किंतु जो कुछ कंपनियां बना के बेच रही है, वो आई डाउट के वैसा वो गुलाब जल है, क्लियर नो कट सर, उसके प्रोबेबली पोस्ट पिक्चर हो के। ही नहीं सकता ओरिजिनल, कंपनीज जो बना रही है वो है ही नहीं। और एक्चुअली ग्लैड टू नो कि इंडिया में तो आपको फिर भी ओरिजिनल मिल जाएगा, यहाँ बाहर तो कहीं ओरिजिनल है ही नहीं, सारे गुलाब भी केमिकलाइज्ड हैं। और अभी जो हमारे यहाँ ना, यहाँ मौसम बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ रोज की खेती बहुत होती है जिस तरफ मैं हूँ, तो यहाँ तो आप देखेंगे तो पूरा केमिकल वर्क ही है। और वैलेंटाइन से चलते तो कुछ ज्यादा ही पैदावार में लगे हुए हैं, इतना केमिकल यूज हो रहा है कि वो आप रोज वाटर यूज करोगे तो सूदिंग इफेक्ट तो नहीं होगा, कुछ उल्टा ही हो जाएगा। नहीं, वो क्या वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। जैसे टमाटर है, देसी टमाटर की टेस्ट अलग ही है, किंतु आजकल जो सलाद का टमाटर आता है केवल रेडनेस के कारण बिकता है वाली स्थिति है। तो वास्तव में डिमांड और सप्लाई वाली बात है। तो पुराने आदमी देसी गुलाब को काम में लेते थे, जो लाल नहीं होता था, पीला काला ऐसा नहीं होता था। और वो या तो सेवती गुलाब सफेद रंग का होगा, गंध होगी उसमें, और या फिर गुलाब होगा गुलाबी कलर का।
वो काम आएगा, उसमें गंध होती है, और सूर्योदय से पहले उसको कलेक्ट करके और अर्क यंत्र में डाल देना है, नहीं तो फ्रेग्रेंस सारी सूर्य ताप से उड़ जाती है। फूल जो है उसमें जब ओस पड़ती है, और उस समय चेती गुलाब में काम करने वाले सर्दी जुकाम के पकड़ में आ जाते, क्योंकि खेत में जाके कलेक्ट करके लाना, प्लकिंग करना। तो ये ट्रेडिशन हम घर में देखते थे, दादाजी करते थे, तो उसके हिसाब से कि सब वहीं रहना है 7 दिन 15 दिन। और एक घड़े के अंदर तिरक पातन यंत्र बना के, तांबे का था अर्क पात्र, और उनका क्लियर था कि साहब आधा लीटर इसमें हमारे को इत्र मिलेगा जब हम 10 बार इसको करेंगे। तो तो उन्होंने कोई ऑयल लिया, चंदन का तेल। आज चंदन का तेल भी कहाँ मिलने वाला है। तो सारी स्थितियां काफी बदल रही है, और कंपेरेटिवली इफेक्ट होता है। जब आंख में डालने की बात आती है तो प्रिजर्वेटिव जो केमिकल बाजार में गुलाब जल मिल रहा है वो भी प्रिजर्वेटिव से फ्री नहीं है। तो इसको भी सोचना चाहिए, थोड़ा सा हम विचार करें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। हमारे साथ शालाक्य के विद्वान डॉक्टर किरण पाटिल हैं। आंखों में गुलाब जल का यूज होता है, तो डॉक्टर किरण पाटिल फ्रॉम कोल्हापुर, मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा गुलाब जल वो यूज करते हैं, क्योंकि डेज का आईटोन हम लोगों ने डेवलप किया था एज ए प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म। तो उसमें गुलाब जल प्योर डाला, कन्नौज से बुलाया, गारंटी से बुलाया कि नहीं ये आंख में डालने लायक है। फिर उसकी भभका देखने गए, फैक्ट्री तो नहीं कह सकते उसको, वो लोकल भभका था खेत में, और मालूम पड़ा कि वो लोग कुछ ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। लेकिन फिर भी तो एक दूसरा एग्जाम्पल भी मेरे सामने है। मैं एपी ढाका का कंसल्टेंट था, ढाका की बहुत बड़ी कंपनी है। आज से 20 साल पहले उसे देखने गया, मालूम पड़ा कि वो केमिकल एसेंस मिला के और पानी मिला के सीधा रोज वाटर बना दे रहे हैं। काम खत्म। एक टंकी में उनने एक बोतल डाला, एक वो केमिकल एसेंस, 100 लीटर 150 लीटर की टंकी में पानी मिलाया और नीचे आराम से भर के उनने दे दिया। तो उनको हमें 1.5 साल लगा समझाने में कि भाई आप ये जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। उनने बदला बाद में। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों की चर्चा से। किरण पाटिल जी, आप तक हमारी आवाज जा रही है? निशांत शुक्ला जी, काय चिकित्सा के प्रोफेसर, आदरणीय निशांत शुक्ला जी। अरे 9:30 बजे तो नहीं सो सकते गुरु। हरिओम नमस्कार सर। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम सर। मैं भी बड़ा मतलब कैसा कहूं मैं, दुखदाई चीज बन गया हूँ। आप लोगों को रजाई में से उठा लेता हूँ, खाते में से उठा लेता हूँ। सॉरी। लाइफस्टाइल ऐसा है कि सभी जगह पर जो है वो दौड़ना पड़ता है। बहुत खूब, बहुत नहीं, खूब। कहीं पर आपका ये दर्द वाला वाक्य की 9:30 बजे तो नहीं सो सकते, मतलब ये समझ लीजिए आपके सर्वाधिकार सुरक्षित है ये इसके पास। आप सो तभी सकते हैं जब हम कहते हैं शिवरात्रि ओनली। रहे आप कैसे भी, चाहे वीडियो ऑन रखें चाहे ऑफ रखें, लेकिन पीएससी की तरह कॉल आप हमारे एडमिटेड रहेंगे। पीएससी कॉल आई, विशल बच्ची कि आप हाजिर हैं। जय हो, जय हो। ठीक है ना। हम लोग ऑल द सेशन मैं इन बिटवीन थोड़ा जो है वो क्लिनिक से घर आ रहा था, थोड़ी जो है वो रहना skip। होगा। ये दोनों जो है ये वेबिनार दैट वाज हाईली इंफॉर्मेटिव। खास करके जो इम्पोर्टेंट केमिकल्स का है उसको आज वी कैन नॉट ओमिट दैट वन, क्योंकि इसके साथ पूरी जो है ये इंडस्ट्री का पार्ट जुड़ा हुआ है, अवेलेबिलिटी का पार्ट जुड़ा हुआ है। एटलीस्ट मेडिसिन मिल जाए वो जो है ये इम्पोर्टेंट रहती है। पहले ये होता था कि हमें कुछ ही समय के लिए मेडिसिन मिलती थी तो हमें ऑल्टरनेट्स का यूज करना पड़ता था, पर आज जो है ये रेडीली अवेलेबल है। दूसरा, प्रिजर्वेटिव्स के कारण अवेलेबिलिटी के साथ साथ ईज ऑफ डिस्पेंसिंग ये भी जो है ये काफी अच्छा हो गया है। काफी केसेस में हमें स्वरस देना पड़ता है, आज जो है ये स्वरस तैयार करके थोड़ा प्रिजर्वेटिव डाल के ये हमको मिल जाता है।
तो फ्रेश अवेलेबल और उसको करो, जूस निकालो, स्वरस निकालो और फिर दो, तो हर एक को जो है ये इतना कन्वीनियंट नहीं रहता है। जहां पर ये ऑर्गन, इम्पोर्टेंट ऑर्गन जैसे किडनी है, लिवर है, वहां की पैथोलॉजी हो, तो वहां पर हमें जो है ये शास्त्रीय जो विधियां हैं उन्हीं से प्राप्त स्वरस और लिमिटेड पीरियड वाला ही, लिमिटेड सेल्फ लाइफ वाला ही हम को यूज करते हैं, और उससे जो है ये हमको लाभ जो है ये मिलने की संभावना जो है ये रहती है। तो पहला जो है ये पक्ष जो सर ने बताया था जितने भी केमिकल्स हैं उसके लिए, ये दिस इज फ्रॉम माय इनपुट। गुलाब जल के बारे में सर ने बताया था, गुलाब जल का यूज एक्सटर्नल एप्लीकेशन में, काय चिकित्सा में मैंने कभी भी आंख में नहीं किया है। भावना मैंने केवल जो है ये जब मैं स्टडीज कर रहा था, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद तो कभी जो है ये औषध निर्माण का काम जो है ये नहीं हुआ है, पर इसको जो है ये यूज काफी जो है ये किया है, खास करके स्किन डिसऑर्डर्स में, एक्नी में, बैलमे स्किन में, तो ये जो है ये यहाँ पर किया है। दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। आदरणीय द्विवेदी सर कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो ये निवेदन कर रहा था कि जितनी चर्चा करी कॉस्मेटिक के हिसाब से ठीक है, किंतु फिर भी इसका तेल भी बनता है गुलाब का इत्र के अलावा, और रोगन गुल करके यूनानी में बनाते हैं। वो तिल को आवासित करके और उसके बाद में तेल निकाल करके उसको रोगन सुर्ख के नाम से, रोगन गुल के नाम से काम में लेते हैं। तो रोगन गुल जो है वो तिल का तेल है, और वो मल शुद्धि के लिए, औतन लोमन के लिए उपयोग करते हैं पल प्रमाण में। और ऐसे ही शरबत भी बनता है गुलाब का। और इनका जो तरीका है वो जैसे चंदन का शरबत बनाते हैं वैसे, तो गुलकंद की तो चर्चा हुई, कॉमनली मिलता है बाजार में। बाकी जैसे ठंडाई वगैरह होती है उसमें भी गुलाब की पत्तियां डाल के घोट करके पीते हैं। तो ये ट्रेडिशन हमारा जो है वो केमिकल फ्री है। किंतु आज जब हम बाजार में देखते हैं तो वास्तव में दुनिया भर के केमिकल हैं। और रसशास्त्र तो पूरा ही केमिकल है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। रसशास्त्र में जितने भी चीजें नेचुरल बनती है वो कृत्रिम बन के काम आ रही है, और हम उसको खनिज मान करके काम में ले रहे हैं। तो बाजार में तो पूरा पटा हुआ है केमिकल से, तो दूर नहीं भाग सकते और उसके साथ जीना पड़ेगा। इतना ही मैं कहूंगा। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, बिल्कुल ठीक कहा। बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जुड़े रहिएगा। हमारे दो कविगण ज्वाइन कर चुके हैं। आदरणीय शशि श्रोत्री जी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। मेरे भाई डॉक्टर रंजन वर्मा, विशद डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर यूपी, बहुत बहुत स्वागत। मैं प्लीज जुड़े रहिएगा। मुझे केवल 5 मिनट दीजिए। अग्निहोत्री सर, यदि आप तक मेरी आवाज जा रही है तो एक संक्षिप्त उपसंहार की प्रार्थना करता हूं, तब तक मैं लिंक चेंज कर दूंगा। विशद जी स्वागत है। जी प्रणाम सर।